क्लासिफिकेशंस ऑफ न्यूरॉन. सो वी विल क्लासिफाई द न्यूरॉन ऑन मल्टीपल बेसिस. बहुत सारे तरीके हैं इसको क्लासिफाइड करने के जो हम डिस्कस करेंगे आज वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज द मल्टीपोलर न्यूरॉन. नेम जो लिखा है वही आपको इसको पूरा इंडिकेट समझा. स्टार्ट हो गया क्या? हो गया? वेट करें, अभी नहीं हुआ. मल्टीपोलर न्यूरॉन. मल्टी मींस more than one, that is more than two, not one but more than two, that is multiple. And polar means pole, projection. Simple word में बोले तो projection. So multipolar neuron और so ऐसा न्यूरॉन हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था. Types of neuron which already discussed in the last class. In this neuron, this is the cell body. So this is the cell body. When multiple projection arising from a cell body, this type of neuron is known as multipolar neuron. Here this is also like this is the cell body. This one projection, second, third, fourth, fifth, sixth, seven. So there are seven projection arising from a cell body of the neuron, and this type of neuron is considered as a multipolar neuron. So simple याद हो गया definition. Simply what is multipolar neuron? When there are multiple projection arising from a cell body of a neuron, that is known as multipolar neuron. Clear? So यही यहाँ लिखा हुआ है. This type of neuron usually have several dendrites and one axon. Dendrites और axons क्या है? Projection of cell body. आपकी cell body के projections को ही हम क्या बोलते हैं? The dendrites and axon. मोस्ट न्यूरॉन इन द ब्रेन ये कहां लोकेटेड रहेंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन का हम लोकेशंस आइडेंटिफाई करें कि कौन से एरिया में आपको मिलेंगे. सो मोस्ट न्यूरॉन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इन दिस टाइप एज वेल एज ऑल मोटर न्यूरॉन. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड उसके साथ में जो बॉडी के मोटर न्यूरॉन है, all the motor neuron which is taking information from brain to the muscles or the motor system, that all neuron is type is multipolar neuron. याद रहेगा. And this is the structure of this जो हमने ड्रॉ किया सेम वैसा ही. This is the cell body, multiple dendrites, one axon and your terminal axon या telodendrites. This is the first type of neuron, multipolar neuron. नहीं हुआ? अरे रिकॉर्डिंग तो हुई थी पर. What is multiple neuron? Your answer should be when there are multiple projections or more than two projections are arising from a cell body, that is known as multipolar neuron. And out of these multiple projections, one large projection is the axon and other small projections are dendrites. This type of neuron mainly present in your central nervous system, brain and spinal cord, and other parts अगर हम बात करें तो in the motor system of our body. जो motor neuron जहां भी होते हैं वहां पे आपका रहेगा multipolar neuron. Clear? मूव करें. तो सब कुछ एरियाज मैनेज करने की कोशिश करते हैं. दैट इज द बाइपोलर न्यूरॉन. क्या लिख लिया? बाइपोलर वर्ड आपने पहले भी सुना होगा. लाइक इन इमरजेंसी वी हैव अ बाइपोलर फॉरसेप, in psychiatric we have a bipolar disorder, and in our nervous system we have a bipolar neuron. So bi means two. Its bi is not a house wali bi. Its bi means two, and polar means again pole. So means projection. When there are two projection arising from a cell body, how much? Two projections. In multiple or multipolar neuron, multiple projections are arising from cell body, but in bipolar neuron, two projections, like this is the neuron, one projection and second projection. Only two projections are there, that is known as bipolar neuron. One projection is the axon and one projection is dendrites. So information will travel in same direction. जो हमने पढ़ा था वही रहेगा. The information will travel from dendrites to the cell body and then axon. Same जो आपका pathway है वो same रहेगा. But इसमें सिर्फ difference क्या है? Only one difference is कि there is only two projection. दो ही projection आते हैं cell body से. एक क्या होगा आपका? Axon बनेगा, दूसरा आपका dendrites होगा. Clear? तो यहाँ पे लिखा है इसके बारे में clearly. Bipolar neuron have one main dendrites and one axon. Two projections. They are found in the retina of the eyes. आंखों के अंदर जो आप रेटिना देखते हैं वहां पे आपको मिलेंगे ये. Inner ear and the olfactory area of the brain. This is the bipolar neuron. On one side, this is the dendrites, this is the axon, this is the cell body. So information will travel in this direction. Clear? Bipolar neuron. Multipolar neuron present in our central nervous system and in motor system. Bipolar neuron mainly present in our sensory organs like eyes, ear, and the olfactory nose area. So in our sensory part, we have the bipolar neuron. The next monopolar या जिसको हम यूनिपोलर के नाम से जानते हैं. कल जाके पढ़ा सबने ब्लड? नहीं पढ़ा?
वेरी गुड, कुछ डाउट है? हैं? कोई डाउट नहीं है? और मैंने जाके 2 बार वापस पढ़ा, मैंने कहा मैं बात टाइम बाद पढ़ा रहा हूँ, कुछ अलग तो नहीं पढ़ा दिया मैंने, है? और आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं होता है कभी? यस, इवन मैं हेमेटोपोइसिस को 4 बार पढ़ चुका हूँ, कल से आज दिन तक, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब तो ये ये पीपीटी आपकी चल रही है अभी, एक नर्वस तो अभी खोला मैंने, ये आपका खुला है, पढ़ के आया करो तो डाउट नहीं रहेंगे। कितने क्वेश्चन है पेपर में? अच्छा, पेपर तो दिया ही नहीं ना आप लोगों ने। हाँ, हाँ, कल आएगा पेपर तो। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशंस ऑफ न्यूरॉन में थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन, दैट इज यूनिपोलर न्यूरॉन। सो इस न्यूरॉन के बारे में स्पेसिफिक पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग, as we know that the information is always travel from dendrites, then cell body, and then axon. This is the pathway of the transfer of information in our nervous system. But in unipolar neuron, there is only one pole. This is the cell body and this is the pole. And then this pole further divided into two parts. One is axon and one is dendrites. Now, if the information is traveling from dendrites to the axon in this type, तो इन्फॉर्मेशन तो आपके सेल बॉडी के पास गया नहीं, जो हमने बोला था इन्फॉर्मेशन ऐसे जाना चाहिए, तो वो तो पहुंचा ही नहीं। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है नर्वस सिस्टम में? In our nervous system, all the information which is traveling through a neuron, that should be travel from the dendrites to the cell body and then to the axon. But in case of unipolar neuron, the information is traveling directly from the dendrites to the axon. Information not crossing the cell body के पास जाती नहीं है. And that's why this type of neuron is not considered as the real neuron. It's a type of pseudo neuron or fake neuron. Pseudo neuron है, ये असली वाला न्यूरॉन नहीं है। अगर असली होता तो इन्फॉर्मेशन को ऐसे ले जाता। अब ऐसा क्यों कैसे पॉसिबल है कि एक ही न्यूरॉन, एक ही प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पे? तो ये तब पॉसिबल है जब हम इस न्यूरॉन को कंपेयर करें। ये कौन से टाइप का है? बाइपोलर, और ये आपका यूनिपोलर। कैसे बन सकता है कि इसका जो ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों को ऐसे पुल करके साथ में बांध दे, दोनों को ऐसे पकड़ के पास में लाए, बांध दिया और लास्ट में दो एंड बना दिए, तो क्या बन गया? इट मींस द यूनिपोलर न्यूरॉन इज आल्सो टाइप ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन। जब ये बना था, अर्ली फेज में था, तब ये कौन सा था? बाइपोलर था, व्हिच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू द यूनिपोलर न्यूरॉन एंड इट इज आल्सो नोन एज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन या बाइपोलर न्यूरॉन, जो हम बात करते हैं इसकी। यूनिपोलर न्यूरॉन हैव डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन दैट आर फ्यूज्ड टुगेदर। दोनों ऐसे क्या हो गए? फ्यूज हो गए to form a continuous process that emerges from the cell body. These neurons are more appropriately called pseudo-unipolar neuron. Why it is known as pseudo-unipolar neuron? Because they begin so in the embryo as a bipolar neuron. जब embryo बना, fetus बन रहा था, development हो रहा था, तब जो starting में बना वो कौन सा था? Bipolar था. Slowly they fuse together, axon and dendrites fuse together, and they will form only single projection, and that's why it is known as unipolar, but pseudo-unipolar neuron. Clear? And during the development, the dendrites and axon fuse together and become a single process. आगे जाके फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना देंगे? एक सिंगल न्यूरॉन बनाएंगे, लाइक दिस। देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द सेल बॉडी एंड फ्रॉम सेल बॉडी ओनली वन प्रोजेक्शन इज अराइजिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिपोलर। ये प्रोजेक्शन इसके सेल बॉडी से नहीं है। अगर आप इसको देखोगे तो सेल बॉडी से कितने प्रोजेक्शन आ रहे हैं? देयर इज ओनली वन प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। ये तो डायरेक्टली सेल बॉडी से नहीं आ रही है, तो इसके दो पार्ट हो गए, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एंड इंफॉर्मेशन विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? कहां प्रेजेंट होंगे न्यूरॉन? यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन कहां प्रेजेंट रहेंगे? तो सो बेसिकली ऑन द सरफेस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो आपका स्किन वाला पार्ट पेरिफेरी पार्ट है, मोस्टली यहाँ पे क्या होंगे आपके? इस तरह के न्यूरॉन आपको देखने को मिल सकते हैं, बट वेरी फ्यू नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर। सो ऑन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी तो ऐसे न्यूरॉन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? वो करें। सो थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, मोनोपोलर, सॉरी यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। एंड बाइपोलर का एक कन्वर्टेड फॉर्म क्या बना? Unipolar, which is we can say it's a type of bipolar only, but after the development, the bipolar is converted into unipolar with the fusion of dendrites and axon. Okay. Next, मूव करें आगे। नेक्स्ट प्रिंट हो चुका होगा। तीन जो सर है वो अवेलेबल नहीं है 5:30 बजे में। व्हाट इज नर्व? चलो नर्व के पहले कुछ छोटी मोटी चीजें और पढ़ते हैं हम यहाँ पे। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ मैं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में। लाइक दिस इज द न्यूरॉन, सेल बॉडी एंड कहाँ जा रहा है पता नहीं। So this is the cell body and this is the axon. This is again other cell body and axon. Just imagine करें, ऐसा ही है, ये हम imagination से बना रहे हैं। So these are the cell body and axon. This is the upper part which is having only cell body, and this is the lower part which is having only axonal part. And these neurons are present in our
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, central nervous system. These are the neuron which is present in our central nervous system, and these neuron having one group which is present in upper side, that is the group of cell body and the group of axon. When this group of cell body present in the central nervous system, this group of cell body is considered as a gray matter. Gray matter. So अगर कोई पूछे what is gray matter, answer should be the gray matter is the group of cell body, but important to mention in the central nervous system. It is only in the central nervous system, not in peripheral nervous system. If you are writing peripheral nervous system, तो उसका meaning अलग हो जाएगा, जो मैं अभी बताऊंगा. So the group of cell body within the central nervous system is considered as a gray matter, and this group of axon, this will form in the central nervous system. This will form white matter. Group of axon in the central nervous system will form the white matter. What is gray or what is white? Why it is gray? Why it is white? ऐसा क्या? So if you go for the microscopic examination of this neuron, you will see there are so many granules found in this cell body. There are so many granules which is present in our cell body, granules found in the cell body, and due to the presence of this granule, cell body will give you the gray color. This granule will provide you a gray color of the cell body. So this is the way to identify where the cell body is located. We will go for the microscopic examination and see the gray color. Gray color किसकी वजह से है, तो आंसर क्या होगा? Due to the presence of granules which is only present in cell body, not in your dendrites or not in your axon. And जब ये gray color granules present होंगे तो ये कौन सा कलर देंगे? Granules का कलर की वजह से gray matter हो जाएगा. और जो आपके axon बन रहा है, ये वाला axon का ग्रुप, axon के अंदर granules क्या होता है? Absent होता है. There is no granules present in the axon, and जब granules नहीं होंगे तो कोई कलर नहीं आएगा. Natural color of this fiber is white. That's why this fiber, if cell body is also not having the granules, then cell body will also look like white color. But granules की वजह से उसका कलर क्या हो गया? Gray. And axon के अंदर granules absent है तो इनका कलर कैसा होगा? White. And that's why it is known as white matter. Clear हो गया? Yes or no? ये देखो gray matter और white matter कैसे बना. ये था brain और spinal cord, central nervous system. इसमें दो पार्ट हो गए. एक क्या है? Gray matter. और दूसरा क्या है? White matter. Gray matter and white matter. Very good. ग्रे मैटर की बात करें तो ग्रे मैटर क्या बनाता है? क्या बनाता है ग्रे मैटर? और कॉर्टेक्स, नहीं सुना? कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई. व्हाट इज कॉर्टेक्स? व्हाट इज कॉर्टेक्स? हमने इसको किसके साथ लिखा है? ग्रे मैटर के अंदर लिखा. मींस ये किससे बनता है? ग्रे मैटर से बनता है. या किसी तरह से बनता है. वो किससे बनता है? ग्रे मैटर से. सो वी कैन से कॉर्टेक्स इज ए स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ग्रे मैटर. ग्रे मैटर क्या बनाता है? आपका कॉर्टेक्स बनाता है. सेरिबेलर कॉर्टेक्स, सेरिब्रम कॉर्टेक्स होता है. एंड हमने ऑलरेडी ये भी पढ़ा है, कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, याद है? सो सिंपल सा डेफिनेशन है कॉर्टेक्स का. व्हेन द ग्रे मैटर प्रेजेंट इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम और द ब्रेन, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स. अगर ये सेरिब्रम के पेरिफेरी में प्रेजेंट है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरेबेलम के पेरिफेरल में प्रेजेंट है तो सेरिबेलर कॉर्टेक्स. लाइक दिस इज द ब्यूटीफुल ब्रेन. नाउ this will be divided into two parts. So this gray color which is present in the peripheral part, this will be considered as the cortex. This is the cortex. Now अब इसमें प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी इंपॉर्टेंट आपको समझना जरूरी है. सो दिस इज द ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरेबेलम. न्यूरॉन का जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो कैसे रहेगा आप देखिए यहाँ पे. न्यूरॉन विल बी प्रेजेंटेड लाइक दिस. दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द एक्सॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन. So what you will see, there is a bunch of axon which is present in central part of the brain, and there is a bunch of cell body which is present on the peripheral part of the brain. This group or bunch of the neuron cell body which is present on the peripheral part will give you which color? Gray color. And the bunch of or the group of axon which is present in the central part, that will give you white color. Yes or no? So यही तो स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाया. आ गया समझ में? Yes or no? Now यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? Gray matter which is present on the peripheral part of the brain is known as cortex. If it is present in the cerebrum, that is known as cerebral cortex. If it is present in your cerebellum, it is known as cerebellar cortex. दो ही cortex होते हैं brain में, cerebellar and cerebrum cortex. Clear यहाँ पे? Next thing, nuclei. ये भी तो किसका part है? Gray matter का ही part है, मतलब ये भी gray matter से ही बना है. अब ये होता कहाँ है वो देखते हैं. So nuclei is also a group of, or we can say bunch of
सेल बॉडी और ग्रे मैटर का ही पार्ट है, बट ये होता कैसे और कहां होता है? सो दिस इज द इनसाइड इज व्हाइट मैटर, अंदर पूरा व्हाइट व्हाइट है, बाहर पूरा क्या है? ग्रे ग्रे है। अब उस व्हाइट वाले पार्ट में हम क्या करें? इसके अंदर एक सेंटर में क्या डाल दें? ऐसे एक ग्रे मैटर डाल दें। पानी का बोतल है, मान लो ये बाहर वाला क्या है? प्लास्टिक जो है वो ग्रे मैटर है और अंदर पानी क्या है? व्हाइट मैटर है। आप इसके अंदर कुछ भी इक्विपमेंट डालेंगे पानी के अंदर चला जाए, बीच में जो रहेगा, सेंटर में रहेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसके बीच में क्या डाल दिया हमने? कुछ ग्रे मैटर का एक बॉल डाल दिया अंदर, वो इसके अंदर बीच में है, सेंटर में है, पानी के बीच में है। उसके चारों तरफ क्या है? व्हाइट मैटर। जैसे इसमें एग्जांपल पूछे कि पानी में आपने डाला तो चारों तरफ क्या पानी है और बीच में वो ऑब्जेक्ट है। सेम ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर इज ए ग्रे मैटर और इस वी कैन से बंच ऑफ और ग्रुप ऑफ सेल बॉडी व्हिच इज सराउंडेड बाय एक्सोन और सराउंडेड बाय द व्हाइट मैटर। कॉर्टेक्स में क्या डिफरेंस है कि कॉर्टेक्स डज नॉट सराउंडेड बाय व्हाइट मैटर, कॉर्टेक्स इज ओनली द gray matter, but nuclei is the structure which is formed by gray matter and it is present deep inside the brain and surrounded by white matter। ये deep में होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है? white matter, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। जैसे अलग अलग जो आपकी क्रेनियल नर्व होती है उनका सबका अपना अपना न्यूक्लियस होता है, थर्ड ऑफ न्यूक्लियाई, फोर्थ ऑफ न्यूक्लियाई, फिफ्थ ऑफ न्यूक्लियाई। हमारे पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियाई है, बेसल न्यूक्लियाई, जानते हो? बेसल गेंगलिया जिसको आप बोलते हो। गेंगलिया इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, गेंगलिया इज एन एबनॉर्मल प्रोनाउंसिएशन, वो रॉन्ग है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, पर उसका नाम रियल में क्या होता है? बेसल न्यूक्लियाई। क्या हो गया, पता नहीं था आपको? अच्छा हॉस्पिटल गए थे, फिर बता दिया था आपको कि क्लास चल रही है, टेस्ट नहीं है। ओके ठीक है, बैठो आराम से, रिलैक्स हो जाओ 5 मिनट। हाँ, समझ में आ गया क्या पढ़ा? कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियाई क्या डिफरेंस? तो क्लियर है डिफरेंस? कॉर्टेक्स इज the gray matter which is present on the peripheral part of the central nervous system or brain which is not surrounded by white matter, but cortex जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई क्या है? न्यूक्लियाई is the gray matter which is surrounded by white matter present in the deep inside your brain, that is known as nuclei। क्लियर हो गया यहाँ तक? वेरी गुड, ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। ये तो मैं ऐसे ही एडिशनल चीजें बता रहा हूँ आपको जो आपकी किताब आपको नहीं बताएगी और हमें आगे काम आएगी। क्लियर यहाँ पे? व्हाइट मैटर, इसका भी कुछ बनाए? क्या बनाए? चलो इसके 3 पार्ट कर देते हैं हम। व्हाइट मैटर से क्या बनेगा? व्हाइट मैटर किससे बना है? सॉरी, व्हाइट मैटर किससे बना है? एक्सॉन से बना है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे व्हाइट मैटर की, तो व्हाइट मैटर से हम 3 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद 3 स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज ट्रैक्ट्स। सुना है? ट्रैक्ट्स। तब ये मार्कर खराब हो गया, क्या चक्कर है इसमें? हाँ, ट्रैक्ट्स। सेकंड वन इज ट्रैक्ट्स फाइबर, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट्स फाइबर। सेकंड वन इज एसोसिएशन फाइबर एंड थर्ड वन इज कमिश्नरल फाइबर। सही है गलत है? ये स्पेलिंग कभी मैं राइट में लिखता हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दिस स्पेलिंग। कमिश्नरल, सी ओ एम आई, कमी स नो आई। अब ठीक है, जो भी है समझ जाओ। कमीशन जो होता है पुलिस कमिश्नर, वैसा कमिश्नरल फाइबर। ये स्पेलिंग में बहुत रटता हूँ, पर मैं रट रट के कभी याद कर नहीं सकता हूँ, इसलिए याद नहीं होती है। कमिश्नरल फाइबर। और स्पेलिंग का कोई मैटर नहीं है, हमारे लाइफ में स्पेलिंग नहीं आती है तो सबसे बेस्ट क्या है? कमिश्नरल फाइबर। आप जानते हो क्या होता है, लिख लो बस। हमारे एक जो टीचर थे उसने यही सिखाया, उसका सबसे बेस्ट ये लगा था मुझे तो। और ये सबसे बेस्ट तरीका था उनका। वो क्या करते थे, जो उनको नहीं लगा ये बहुत बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट है, तो वो बस ऐसे लिख देते कमिश्नरल फाइबर। बोली में ऐसे रहो ना, कमिश्नरल लिख दो, बस हो गया। सो बढ़ लेते हैं, क्या होता है सुना होगा आप लोगों ने पहले, नर्वस सिस्टम में पढ़ा है पहले? नहीं पढ़ा? आप लोग जाके यही बोलते होंगे पता नहीं कहां से लाते हैं, क्या क्या लाते हैं, हमने तो आज दिन तक देखा ही नहीं ऐसा कभी है। कोई नहीं। ट्रैक्स, असेंडिंग ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स नहीं पढ़ा? पढ़ा है? सोचा कभी ट्रैक्स क्या होता है वहां पे? पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट टाइप ऑफ फाइबर इज नोन एज ट्रैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैक्स? those fiber which carries information from upper part to lower part and lower part to upper part, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रैक्स, लाइक ascending tracks, descending tracks होते हैं। cerebrospinal tracks नहीं सुना? स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्स। चलो नेक्स्ट, ये हो गया। सो इसमें क्या होगा? इंफॉर्मेशन ऐसे जाएगी ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। एसोसिएशन फाइबर जो सेकंड वन है ये। दूसरे की बात करें, एसोसिएशन फाइबर, नाम में लिखा हुआ एसोसिएशन, यानी दे जस्ट एसोसिएटिंग, किसको किससे एसोसिएट करेंगे? सो दोस फाइबर व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज नोन एज एसोसिएशन फाइबर। फ्रंटल लोब को पीछे वाली से जोड़ना, पीछे वाली को आगे वाली से जोड़ना, दैट इज द यानी अप डाउन इंफॉर्मेशन ट्रैक्स anterior posterior, that is association fiber। and the last one is commissural fiber, these are the fiber which carries the information from the right part of the brain to the left part of the brain and from left part of the brain to the left part of the brain, like transfer of information in this direction, that is the commissural fiber। so these are the 3 type of fiber। पूरी information मिल गई चारों तरफ से बॉडी की, राइट लेफ्ट भी हो गया,
एटीरियर पोस्टीरियर भी हो गया एंड अप डाउन भी आपका हो गया, और ये किससे बना था? व्हाइट मैटर्स। यहां तक कोई डाउट? ये किसमें पढ़ा हमने? सिर्फ ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने नहीं लिखा है वो यहाँ लिखा, ब्रेन। ये किसके पार्ट है? ब्रेन सीएनएस का। भाई ये चीजें पीएनएस में भी तो होती होगी। स्पाइनल का, सॉरी आपका सेल बॉडी एंड एक्सोन जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होता है। वहां क्यों नहीं लिखा हमने? तो उसमें भी कुछ बनता होगा, वो भी तो लिखना पड़ेगा। पढ़ा दे वो भी। चलो ये लिख लिया। लिख लिया। नाउ द नेक्स्ट इज द, ये सिंपल बेसल फाइबर एसोसिएशन फाइबर, याद रहेगा। नाउ इफ द न्यूरॉन विच प्रेजेंट इन आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड इट विल फॉर्म ए बंच और ग्रुप, तो वो क्या बनाएंगे? दोनों की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सेल बॉडी का भी बात करेंगे और उसके साथ साथ में आपका एक्सोन का भी डिस्कस करेंगे कि दोनों से क्या फॉर्म होगा यहाँ पे। तो बना लिए। cortex present on peripheral part of the central nervous system and nuclei present in the deep central deep part of the brain which is surrounded by white matter। समझ गए आप? चॉकलेट आती है वो एक बहुत, एक जैसी इसमें व्हाइट व्हाइट अंदर कुछ भरा होता है, ऊपर से चॉकलेट होती है, फिर उसको ऐसे दबाते अंदर से निकलता है, वैसा वाला। समझ गए? बिस्किट आता है हाइड एंड सीक या जो भी ऐसे कुछ बिस्किट आते हैं, इसके अंदर चॉकलेट होती है, बाहर से पूरा ऐसे दिखता नहीं है, होता है ऐसा। वो अंदर वाला की बात हम कर रहे हैं, अंदर भरा हुआ है, बाहर कवर है। तो अंदर ग्रे है, बाहर व्हाइट वाला कवर है, दैट इज नॉन एज न्यूक्लियाई। नेक्स्ट लिख लिया। नेक्स्ट इज इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, in peripheral nervous system again the group of cell body and again the group of, मैं यहाँ पे नाम पहले लिख रहा हूँ क्योंकि आपसे पूछूंगा मैं। एक्सॉन पहले मैंने लिखा था ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, तो उसका मीनिंग क्या था? ग्रे मैटर मींस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ एक्सोन इन द आपका व्हाइट मैटर इन द सेंट्रल सिस्टम, दैट इज नोन एज व्हाइट मैटर। नाउ व्हाट इज द ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी सेम जो हमने पढ़ा था ऐसे ये ग्रुप बनेगा, बट ये आप कहाँ प्रेजेंट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये जो ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, ये जो ग्रुप है और ये आपका नीचे वाला एक्सोन का ग्रुप है। सो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इस ग्रुप की, ये वाला ग्रुप। मोर क्लियरली आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, एक्सोन का ग्रुप है। सो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इस ग्रुप की, ये वाला ग्रुप। मोर क्लियरली आई कैन ड्रॉ लाइक दिस। सो दिस सेल बॉडी ग्रुप इज इन पेरिफेरल। याद रखें किस कौन से सिस्टम की हम बात कर रहे हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे? So when the cell body combine in peripheral nervous system or make a group in peripheral nervous system, this group of cell body is considered as a ganglion. क्या बोलेंगे? Ganglion. And when the group of axon in peripheral nervous system, this group of axon in peripheral nervous system, this will form a structure which is known as nerve, जिसको अब मुझे पढ़ाना है, इसके लिए इतनी सारी रामायण करी है नर्व के लिए। तो अब आ गया समझ में नर्व क्या होती है। नर्व क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन which is present in our peripheral nervous system, that is known as nerve. Very good. इतना इजी आप समझ जाते हो, इतना पूरा करना पड़ा। बना लिया। वो करें। लिख लिया। बना लिया अगली स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे? नर्व। नर्व क्या होती है उसकी बात करते हैं, नर्व की स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं। नर्व इज अ ग्रुप ऑफ एक्सोन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यू कैन राइट नर्व इज अ ग्रुप ऑफ एक्सोन इनसाइड द और इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों एक ही है, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बोथ आर द सेम। सो दैट ग्रुप ऑफ एक्सोन इज नोन एज नर्व। क्लियर? इट इज आल्सो नोन एज पेरिफेरल नर्व। बनाते हैं नर्व की स्ट्रक्चर कैसे बनती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम आर्टरी, वेन और नर्व की बात करें तो विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर? आर्टरी, वेन एंड नर्व, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? नर्व। वेरी गुड। सो नर्व इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी आउट ऑफ दिस थ्री। अगर आप नर्व को हाथ में पकड़ के ऐसे करेंगे तो कभी नहीं तोड़ सकते आप, आपके हाथ से नहीं टूटेगी, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है नर्व। और सियाटिक नर्व दे दे तो फिर तो आप उस पे हैंग हो जाओ तो ही नहीं टूटेगी, इतनी मजबूत नर्व होती है। नर्व बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती है? वो उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, अभी बनाएंगे हम इसकी स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करें नर्व की स्ट्रक्चर बना। नर्व कैसे बनती है? तो सबसे पहली स्ट्रक्चर क्या होगी नर्व के अंदर? और ये लिखा नहीं इधर, क्या होगा सबसे पहले? एक्सॉन। सो यहाँ पे एक पिक्चर पहले से बना हुआ है, इफ यू लाइक टू ड्रॉ दैट पिक्चर तो आपकी इच्छा, नहीं तो हम बना देते अपना वाला।
यस, ये बना लिया, लिख लिया। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है, ये देखो ब्यूटीफुल सा पिक्चर है ये, अच्छा लग रहा है, बनाए या बनाओगे ये? हाँ वेरी गुड। सो हम बनाते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम बात करते हैं वो है आपका व्हाइट। व्हाइट अब इसमें दिखेगा नहीं, तो व्हाइट हम अंदर रखेंगे, उसके ऊपर कवरिंग बना देंगे तो अंदर व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट क्या होता है? नर्व, एक्सॉन। सो एक्सॉन से सही बना है आपका नर्व, तो सबसे पहले क्या, ये एक्सॉन है, दिस इज द एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है, दिस इज द कवरिंग ऑफ द एक्सॉन। सो इनसाइड क्या है, व्हाइट वाला एक्सॉन। ये नाम लिख देते हैं इसका, एक्सॉन यहाँ पे दूर तक। पहले लिखना नहीं है, पहले सीखना है, बनाया तो गलत बनाऊंगा मैं फिर। हाँ, दिस इज द covering of axon, this is the covering, first covering of the axon, it is known as endoneurium. Now ऐसे बहुत सारे एक्सोन के कलेक्शन से एक बंच बनाएंगे, there are so many axons will form a group or bunch, so यहाँ बंच बना देते हैं, like this is the one, this is the second, this is the third, fourth, fifth, sixth, so this is the bunch of axon which is surrounded by the axon surrounded by endoneurium. अभी तक endoneurium बनाया. Now this bunch of axon which is surrounded by endoneurium is further surrounded by one more membrane. यहाँ पे अब क्या आएगी, एक और membrane आएगी जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे. So this is surrounded by which color? Green. So this is the covering of your bunch of axon and it will form a single structure. एक single structure बना, ये पूरा एक single बन गया ऐसे, like रस्सी आपने देखी होगी, रस्सी जानते हो, रस्सी होती है, रस्सी के अंदर बहुत सारे धागे होते हैं, उनको एक साथ बना के बड़ा बनाते हैं, वैसा ही हमने बनाया, मल्टीपल एक्सॉन्स को एक साथ कलेक्ट किया और उनको एक साथ, ये अपने जो वायर्स आते हैं आपने देखा, एक बहुत सारे वायर को साथ में करके ऊपर एक सिंगल वायर का बड़ा सा कवर बनाते हैं, फिर उन सबको करके वापस एक बड़ा और बनाते हैं, सो वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे. So this is the white one axon, this purple one is the endoneurium and this green one is the perineurium. This is known as perineurium. This whole structure जो यहाँ बनी अभी, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, this whole structure is considered as a fascicle. This whole structure is considered as fascicle. There are multiple fascicles combined together. Okay, green, huh, right. So here one more fascicle. This is one more fascicle. Here one more fascicle. Fascicle. These are the multiple fascicles. 1, 2, 3, 4 ऐसे multiple. इनके अंदर क्या है? Same वही structure है सारी. सब के अंदर एक्सोन का बंच है. तभी fascicle बनेगा. अब मैं थोड़ा ऐसे रफ जा रहा हूँ. एक हमने अच्छा सा बना दिया, बाकी को ऐसे बना दो. समझ रहे हो? बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है. So in this structure there are so many fascicles which combining with each other, एक साथ हमने उनको क्या बना दिया, ऐसे joint कर दिया fascicle को. और जब ये multiple fascicle एक साथ हो गए तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये पहले तो बहुत छोटे छोटे वायर्स थे, उन सबको एक साथ करके एक बड़े वायर बनाया, फिर इस बड़े वायर के अंदर भी 1 2 3 ऐसे बड़े बड़े वायर 10 वायर रख दिए और फिर उनके ऊपर हम क्या बनाएंगे, एक सिंगल कवरिंग. सो इनके ऊपर एक और क्या जाएगा, पूरा होल कवर. और ये जो होल कवरिंग है वो इस सारे fascicle को क्या करेगा, एक साथ होल्ड करके रखेगा. सो दिस ब्लैक कवरिंग इज नोन एज द एपिन्यूरियम. And now the structure which is on your screen is known as nerve. इसी को हम क्या बोलते हैं, nerve. Clear? ये क्या था, इसका नाम हमने लिखा नहीं. This structure is known as, ये जो structure बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, fascicle. Clear? याद हो गया? नर्व बनती कैसे, याद हो गया? नर्व में कुछ भी नहीं है, सबसे पहले एक्सॉन, एक्सॉन की कवरिंग एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम की मल्टीपल जो एंडोन्यूरियम एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, उसको हम कवर कराएंगे किसके साथ में, पेरिन्यूरियम से. और जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, फेसिकल. मल्टीपल फेसिकल एक साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कवर करेंगे और एपिन्यूरियम से कवर होंगे और क्या बना देंगे, नर्व. और जब इतना सारा होगा, जब इतने सारे वायर को एक साथ बना के आप बना दोगे तो फिर उसको तोड़ पाना मुश्किल होगा, नहीं होगा. होता है, जब एक बचपन में स्टोरी होती थी लकड़ी वाली, एक पिताजी अपने 4 बेटों को बुलाते हैं, उन सबको एक एक लकड़ी देते हैं और उनको बोलते हैं इसको तोड़ दो, ऐसे तोड़ देता है, ये लो तोड़ दिया, आपने बोला तोड़ दिया. फिर उसके बाद सबको 10-10 लकड़ी का एक बंडल दिया और बोला इसको भी तोड़ दो, पर वो नहीं तोड़ पाए, हमसे नहीं टूट रही है क्योंकि ये बहुत सारी एक साथ है, हम इनको अलग अलग करके तोड़ देते हैं. तो उन्होंने बोला बस यही मैं आपको सिखाना चाहता था. हिंदी में बोलते हैं संगठन में ही शक्ति है. तुम 4 भाई हो, चारों साथ में रहोगे तो अभी तोड़ नहीं पाएंगे कोई, और अलग अलग रहोगे तो हर कोई आके तोड़ देगा. वही यहाँ पे है, नारू इतने सारे जो है उन साथ मिलकर रह रही है तो टूटेगी नहीं, अलग अलग कर दोगे तो फिर ये इजीली क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. बना लिया नारू, मूव करें आगे. यस नेक्स्ट, मूव करें नेक्स्ट, हटा दे. वहां कोई नोटबुक होगी चेक करने के लिए है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना है, बाकी बना दिया. अभी हमने जो बनाया वही लिखा हुआ है, क्या बनाया देखो,
Each nerve fiber has a central cord formed by axon, अभी बनाया था, that is known as axis cylinder. जो अंदर white होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Axis cylinder. The next one is plasma membrane cover the axis cylinder called axonema or endoneurium. So ये आप लिख देंगे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सारे पॉइंट क्विकली जो हमने अभी बनाया वही है सारे. Each nerve endoneurium, multiple fascicles, many fascicles together form a nerve, and nerve is covered by a tubular sheath called epineurium. This is your the nerve which is very strong. आप तोड़ नहीं पाएंगे उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो. एंड ये आपके लिए एग्जाम जब भी आप हॉस्पिटल में काम करेंगे तो वहां पे भी कंडीशन होती है कि अगर आपको स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, जब आप सर्जरी कर रहे हो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी ब्लड वेसल्स है, कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है, कौन सी नर्व है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे. सो द लैंडमार्क इज व्हेन यू हैव एनी टाइप ऑफ व्हाइट फाइबर दैट इज ऑलवेज नर्व. व्हाइट क्या है? नर्व है. व्हेन यू हैव a large size of tube like structure in red color, that is vein, and when you have a small size red color structure, that is artery. artery जो होती है वो thin होती है. thin मतलब diameter कम होता है. लेयर तो थिक होती है पर डायमीटर क्या होता है? कम होता है. वेन ऐसे वाइड होती है, बड़ी होती है वेन. आर्टरी कभी बड़ी नहीं होती है, वेन आपकी बड़ी होती है. सो ये कुछ आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं, पर इसमें आप एक याद रखिए, व्हाइट कलर इज फॉर नर्व. लिख लीजिए. दिस इज फॉर टुडे ओनली. नर्वस सिस्टम आज ही है केवल. जब हम रूटीन वापस पढ़ेंगे कल से या जब भी मेरी क्लास स्टार्ट होगी, परसों आई थिंक कल है या परसों, जो भी है कल तो आई थिंक नाइट है तो मैं नहीं लूंगा, सेकंड क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो कल मेरी लाइव क्लास होगी. परसों पढ़ेंगे तो हम उसमें ब्लड ही स्टार्ट करेंगे, ब्लड की पढ़ेंगे. सो आपको कैरी करना है ब्लड को. ये जस्ट एक इमीडिएट क्लास था और ऑप्शंस नहीं था मेरे पास, इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया, क्योंकि 2 घंटे में हेमेटोपोइसिस जो है वो इंपॉर्टेंट. आप लोग डिस्टर्ब करोगे, मानोगे नहीं, भागोगे, आधा घंटा तो आप लोग उसमें निकाल दिया. निकाल दिया. तो मंडे तो कल था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. थर्सडे को पढ़ेंगे हेमेटोपोइसिस. भी पढ़ लेना, इच्छा हो तो कोई बात नहीं. मल्टीपल प्लेसेस. फ्रंट में बैठ के इतना धीरे लिखते हो, इतना धीरे लिखते हो, आगे तो दिखता है बड़े बड़े, उधर पीछे तो टीवी लगी हुई है, वहां छोड़. स्ट्रक्चर के बेसिस पे नर्व कितने टाइप की होती है? तो 2 टाइप की नर्व हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे. द फर्स्ट वन इज माइलिनेटेड एंड सेकंड वन इज द नॉन माइलिनेटेड. So myelinated and non-myelinated, this is the nerve fiber. Myelinated nerve means when the nerve is covered by a myelin sheath, it is known as myelinated nerve. When the nerve is covered by a myelin sheath, that is known as myelinated nerve. बताया था myelin sheath. Myelin sheath is a covering of a neuron, approximately nearby 100 time of covering. 100 बार ऐसे covering होती है neuron. So 100 sheet की covering होती है. So that covering is known as myelin sheath, and this myelin sheath is formed by 2 types of neuroglial cell. One is the oligodendrocyte, and second one is the Schwann cell. Oligodendrocyte present in our central nervous system and Schwann cell present in our peripheral nervous system as a myelin sheath. ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आपको आगे न्यूरोग्लिया पढ़ाऊंगा, न्यूरोग्लिया नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल पढ़ाऊंगा. अभी के लिए इतना याद रखें. So this is the myelinated nerve, and one more nerve, this is unmyelinated or non-myelinated nerve. इसके ऊपर कोई myelin sheath present नहीं है. One question जो एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, और वो है what is the purpose of this myelin sheath. So purpose की बात करें, I will give you a simple example of this myelin sheath जो मैं पिछली बार भी बताया था. There is a pipe, रबर प्लास्टिक पाइप जिसमें पानी आता है, मोटर वाला पाइप होता है. एंड ऑन दिस पाइप देयर आर मल्टीपल होल्स. पाइप पे क्या हो रखे हैं? मल्टीपल होल हो रखे हैं. एंड यहां से आपने वाटर को फ्लो कराया, पानी इधर से यहां आएगा. ये पहला पाइप था, आपने इसमें से वाटर स्टार्ट किया. जो वाटर का फ्लो यहां पे पहुंचेगा, क्या ये स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा? क्यों स्लो रहेगा? बिकॉज वाटर क्या होगा, यहां से लीक आउट हो जाएगा. मल्टीपल many amount of the water will be leak out from these pore ends, and a very small amount of the water will reach at the end part of this pipe, and flow is also very slow. It will take more time or less time. Like अगर 1 लीटर वाटर को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है तो 1 लीटर इधर आने में ज्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा? It will take more time, क्योंकि बहुत सारा इधर निकल गया, तो 1 लीटर पहुंचने के लिए आपको 3 लीटर डालना पड़ेगा, तब तो 1 लीटर पहुंचेगा, और उसमें बहुत टाइम लगेगा. The second thing, आपने क्या किया, you bring a plastic tape आती है, वो लेके आए मार्केट से, and you completely wrap this pipe with the plastic tape. टेप से ऐसे रैप कर दिया पूरी को. After packing with this plastic tape, अब आपने फिर से इसमें क्या किया, वाटर स्टार्ट किया, फ्लो किया सेकंड टाइम. Now the flow which present at the end part of this pipe will be fast or slow? Now this time it will be fast, leakage will be 0, and the amount of the water which reach here, that will be 1 liter amount जो पहुंचेगा, that will reach in very quick time, fastly reach होगा क्योंकि leakage नहीं हो रहा है. Yes,
सो ये सेम मैकेनिज्म हम यूज करते हैं हमारे इस प्रोसेस में. When the impulse is passing from here, if there is no myelin sheath, then they will go for again and again exchange. Plus will go plus minus जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कंडक्शन पूरा एक्शन पोटेंशियल आएगा वो पढ़ाऊंगा. वहां पे क्या होगा, बार बार ये इन आउट होगा. कब होगा? When there is no myelin sheath, then the charges will move out in repolation चलता रहेगा. And when this process is going on, then the conduction speed will be slow or fast. स्लो बार बार चेंज करने में टाइम लगेगा तो स्लो रहेगा. सो हमने क्या किया, इसको स्पीड को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर प्लास्टिक लगा दिया. सो फ्रॉम हियर टू हियर देयर विल बी नो कंडक्शन. यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा. एक्सचेंज कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, या फिर नेक्स्ट सेल के बीच में यहाँ पे होगा. इस पार्ट में एक्सचेंज नहीं होगा. एंड इट विल सेव द टाइम. Yes or no? So this type of neuron, which is known as myelinated neuron, will give you a fast conduction compared to a non-myelinated neuron because of again and again exchange of electrolytes or the action potential जो depolarization and repolarization process है उसकी वजह से. Clear? समझ आ गया myelin sheath का purpose? Second thing, in which type of neuron we have the myelin sheath or in which type of neuron we not have the myelin sheath? Like on basis of length, short length or long length. कौन से टाइप के न्यूरॉन में myelin sheath absent होगा? सोच समझ के आंसर देना है. So, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी ने आपको यहाँ पे एक पिन चुभोया इधर नीचे लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी और किसी ने यहाँ पिन चुभोया, किसका मैसेज पहले आएगा? सो दिस इज द इंटेलिजेंसी. अरे सोच रहा है थप्पड़ मारेंगे दर्द दोनों जगह एक ही टाइम पे होता है. पिन उधर चुभाएंगे तो भी तुरंत पता चलता है पैर ऐसे हो जाता है, और यहाँ चुभाएंगे तो भी तुरंत पता चलता है. ये नहीं कि यहाँ पहले आएगा सर, यहाँ थोड़ा धीरे धीरे बाद में ऊपर आएगा, टाइम लगेगा. सेम टाइम लगता है. Conduction speed will be same in both type of neuron. The difference is because from here to here the distance is very short. So this type of neuron is always non-myelinated neuron. When the short length neuron is there, they are always non-myelinated. And when there is a long length of neuron, then they are myelinated. So इनमें conduction fast होगा तो उतनी टाइम में आ जाएगा, और इसमें conduction थोड़ा slow होगा तो same time लगेगा. So time will be same. बस स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होगी, एक myelinated होगा और एक आपका non-myelinated होगा. क्लियर हो गया? चलो लिख लो आप. यहाँ लिखने के लिए कुछ है नहीं, खाली पड़ा देखो. Myelinated means myelin sheath present रहेगा. माइलिन शीत क्या रहेगा? यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा. माइलिन शीत कौन बनाता है? ओलिगो डेंड्रोसाइट. कहां पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. और स्वान सेल कहां पे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. एंड नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा? माइलिन शीत एब्सेंट. क्लियर? माइलिन शीत का पर्पस क्या है? So presence of myelin sheath will increase the speed of conduction. So myelin sheath speed of the conduction, जो conduction होता है उसको क्या करता है? ये speed up करता है, increase करता है, speed को बढ़ाता है. This is the first type of neuron which is known as on the structure basis two types, myelinated and non-myelinated. Clear है सभी को? Yes. Myelin sheath formed by the supporting cell of nervous system, neuroglia. दो टाइप के न्यूरोग्लिया जो यहाँ यूज होते हैं. One is the oligodendrocyte and second one is the Schwann cell. So your integumentary system will be completed mostly by today or mostly by tomorrow. जो भी है दो क्लास, mostly maximum दो है, या फिर आज भी हो सकता है. और गायनिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. और मैंने लास्ट में क्या पढ़ाया था? फार्मा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. ब्लड इज ऑलरेडी स्टार्टेड. कार्डियक इज अबाउट टू फिनिश. एंड वन क्लास इज पेंडिंग, दैट इज स्केलेटल सिस्टम. एंड वन पीडियाट्रिक इज आल्सो कंप्लीटेड. ओल्ड बेस की बात कर रहे हैं. ओल्ड बेस आपकी नहीं कर. हाँ, तो आपका जो बचा हुआ पोर्शन है वो सिर्फ बचा है एक रिसर्च एंड ब्लड का जो रिमेनिंग क्लासेस है वो, एंड दैट विल बी कंप्लीटेड वेरी सून. As we already discussed that कि we will complete before 28th of June. तो उससे पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम रेगुलरली आपका नर्वस सिस्टम और उसके साथ कम्युनिटी पढ़ेंगे. हैं क्या? बैच अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, उनकी 2-4 दिन बंद रखा है. क्लासिफिकेशंस ऑफ नर्व फाइबर सेकंड टाइप की बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन यानी नर्व कहां पहुंच रही है. तो दो टाइप की नर्व हो सकती है. वन इज द सोमेटिक. सोमेटिक का मीनिंग बताया था मैंने पहले. सोमेटिक क्लासिफिकेशंस लिखा था हमने नर्व सिस्टम में, नहीं बताया था? सोमेटिक एंड विसरल, भूल गए? So there are two types of nerve also, somatic and visceral. Somatic, which is nerve supply to the peripheral part of the body, that is somatic, and visceral means viscera, internal organ. So those nerve fiber which supply the internal organ of the body known as visceral. So somatic supply to the peripheral part of body, or we can say skin. Or visceral nerve is supply the
internal organ of the body. Internal organ, somatic nerve and visceral nerve. डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो बाहर पेरिफेरल स्किन को सप्लाई कर रही नर्व दैट इज सोमेटिक एंड जो इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई कर रही है दैट इज विसरल नर्व. मूव करें. सोमेटिक एंड विसरल क्लियर. नेक्स्ट. अरे इधर लिखा हुआ तो है, इधर सोमेटिक इधर विसरल, VISCERAL, और ये नहीं लिखा इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी, पेरिफेरल पार्ट ऑफ बॉडी. और क्या लिखूं मैं इसके अलावा? फिर भी सर वो ब्रैकेट नहीं बनाना, लास्ट में वो बनाना था जो ब्रेन. और सो टू पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, वन इज द ब्रेन एंड सेकंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड. या तो ब्रेन से आ सकती है नर्व या फिर स्पाइनल कॉर्ड से आ सकती है, दो ही लोकेशन हो सकती है. सो दोस नर्व फाइबर व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन is known as cranial nerve, and those nerve fiber which is arising from the spinal cord is known as spinal nerve. So there are two types of nerve on the basis of origin: cranial nerve and spinal nerve. Cranial nerve which arise from the cranium brain and spinal nerve which is arise from the spinal cord. तो यहाँ पे cranial nerve originate from brain, and this nerve is originate from spinal cord. Clear? Cranial nerve and spinal nerve. There are 12 pair of cranial nerve in our brain. और cranial nerve में अगर हम बात करें तो 12 pair और 24 in numbers, and in spinal cord or in the spinal nerve there are 60. कितनी होती है? 62 in number and 31 in pairs. So 62 और the 31 in pairs cranial spinal nerve आपकी जो आगे हम बढ़ेंगे डिटेल में one by one सारी. Cranial nerve and spinal nerve. मूव करें. मूव करें. नेक्स्ट. Depending upon the structure of the nerve structure again दो टाइप से, sensory nerve and motor nerve. Sensory nerve and motor nerve. Sensory nerve is also known as afferent nerve, and motor nerve is also known as efferent nerve. The sensory nerve, the type of nerve which carries information toward the brain, जो ब्रेन की और इंफॉर्मेशन को लेके जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व. सो कैरीज द इंफॉर्मेशन टुवर्ड द ब्रेन. सेंसरी नर्व किधर लेके जाएगी इंफॉर्मेशन को? कैरीज द इंफॉर्मेशन और द नर्व इंपल्सेस इंफॉर्मेशन टुवर्ड द ब्रेन. एंड द सेकंड नर्व, मोटर नर्व, कैरीज द इंफॉर्मेशन away from the brain. ब्रेन से दूर लेके जाना, दैट इज मोटर नर्व. मोटर नर्व बाहर लेके जाती है पेरिफेरल पार्ट पे, एंड सेंसरी नर्व पेरिफेरल पार्ट से रिसीव करती है एंड ब्रेन की ओर लेके आती है. सो टुवर्ड द ब्रेन इज द सेंसरी नर्व एंड अवे फ्रॉम द ब्रेन इज मोटर नर्व. यस है. हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन आएगा. वेरी गुड. हाँ, एक और स्ट्रक्चर का क्या ये कह रहे हो? हाँ, स्ट्रक्चर गलत लिखा हुआ है. स्ट्रक्चर की जगह यहाँ फंक्शन है. पिछली बार भी फंक्शन लिखा होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा था जिन्होंने पिछली बार पढ़ा. सो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन. स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने लिख दिया था पहले ही नंबर पे, याद है? नेक्स्ट. नहीं लिखा? स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने लिख दिया था पहले ही नंबर पे, याद है? नेक्स्ट. नहीं लिखा? ये कुछ एरर जो होते हैं पीपीटी के अंदर जो खत्म भी नहीं होते कभी, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ. अभी आपने बोला लेकिन अगली बार मैं नीचे जाऊंगा तब तक भूल जाऊंगा इसको एडिट करना, और इसमें से कोई पढ़ता नहीं है. ये तो जस्ट आपको दिखाने के लिए है, बाकी तो पढ़ने के. क्लियर? नेक्स्ट. डिपेंडिंग अपॉन द सीक्रेशंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. ये हटा दे. न्यूरोट्रांसमीटर जानते हैं? नहीं जानते तो इस नर्वस सिस्टम में उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम. टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कैसे क्या करते हैं वो भी पढ़ेंगे आगे डिटेल में. सो न्यूरोट्रांसमीटर आर द स्पेशल केमिकल एजेंट which transfer information from one part of the nervous system to other part of the body or nervous system. एक से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाने के लिए स्पेशल केमिकल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर. केमिकल्स की अगर हम बात करें तो आपको दो टाइप के केमिकल याद रखने हैं. एक याद रखना है जो कौन से सिस्टम को चलाएगा? सिंपैथेटिक को. लिखना नहीं है अभी, रुक जाओ. एंड दूसरा किसको चलाएगा? पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हमेशा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है और पैरासिम्पैथेटिक जो है, दो टाइप के
रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होगा सिंपैथेटिक में? एड्रेनर्जिक, याद है? अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो कोलिनर्जिक, SEH. So this is related to cholinergic system, this is related to adrenergic system. In adrenergic system the neurotransmitter is adrenaline, and in cholinergic system the neurotransmitter is SEH or acetylcholine. Acetylcholine. So these are the sympathetic and the parasympathetic जो हम बात कर रहे हैं. इसके बेसिस पे नर्व फाइबर भी दो टाइप के होंगे. Those nerve fiber which secreting adrenaline is known as adrenergic nerve, and those nerve fiber which is secreting acetylcholine is known as cholinergic. So adrenergic nerve and cholinergic nerve, adrenergic and cholinergic nerve. Adrenergic nerve क्या रिलीज करेगी? Adrenaline. And cholinergic nerve क्या रिलीज करेगी? Acetylcholine. This will control the sympathetic system and this will control the parasympathetic. आगे पढ़ाऊंगा मैं पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक क्या होता है, थोड़ा ही वेट करें, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके बारे में. क्लियर है? एड्रेनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशंस जो प्रोड्यूस कर रही है उनके बेसिस पे दो टाइप आपके हैं. जो एड्रेनलिन प्रोड्यूस करेगा वो एड्रेनर्जिक, और जो एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस करेगा वो आपका कोलिनर्जिक. क्लियर? यस. नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर. सो एलांगर एंड जो गेसर दो पर्सन थे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था. एलांगर एंड गेसर क्लासिफाइड थ्री टाइप्स ऑफ नर्व. The three types, the type A, type B and type C. Type A is the thickest or thinnest. So this is the thickest one. जो सबसे thick nerve होती है उसको हम बोलते हैं type A, और जो सबसे thin होती है उसको हम बोलते हैं type C, और जो बाकी बीच में आगे सारी medium intermediate. So thickest nerve is a type A and thinnest nerve is a type C. This is the on basis of diameter and classified by the Erlanger and Geiser जो person थे इन्होंने इसको classified किया था. The last type of this nerve fiber, मूव करें, आपको भी ऐसे ही लिखना था. What is property? नर्व के पास क्या होता है? क्या पैसे होते हैं नर्व के पास? फ्लोटिबिलिटी क्या है? चार स्पेसिफिक. एक्साइटेबिलिटी व्हिच इज आल्सो नोन एज इरिटेबिलिटी. LITY. Irritability. I will give you an example. If somebody put you a very strong slap on your right or left, जिधर भी उसको मौका मिला, then what is your response? किसी ने इधर एक खींच के लगा दिया आपको, तो आप क्या करोगे? दूसरा वाला सामने इधर भी लगा दे, बराबर हो जाएगा, नहीं तो इधर सूजा हुआ रहेगा, ऐसा हो जाएगा. So जब भी whenever we have any type of stimuli, जब भी हमारी बॉडी में स्टिमुलाई आएगा, you will give response to that stimuli. अब वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस टाइप का रेस्पॉन्स देते हो. यू कैन गिव स्लीप विद डबल पावर, और यू कैन सिट, आप बैठ जाएंगे नीचे, क्योंकि अगर पिताजी ने मारा तो बैठना ही पड़ेगा. फिर अरे पिताजी को भी कैसे मारे, दो लगाऊंगा, डबल पावर है वो तो पॉसिबल नहीं है. सो वो डिपेंड करेगा आपके कंडीशन पे, पर आप रेस्पॉन्स जरूर करेंगे. रेस्पॉन्स क्या करेंगे? लाइक किसी ने भी अगर आपको कोई भी स्टिमुलाई दिया, जैसे एक एग्जांपल जो मैंने दिया था लास्ट क्लास में, व्हेन you all are sitting in this classroom, इसी क्लासरूम में बैठे, and one beautiful girls enter inside the room, this hall, then everyone is, आपकी आंखें यहाँ से हट जाएगी, your sensory organ eyes will be on this gate side, सारी कहाँ हो जाएगी? गेट पे. you are looking to that person, जब तक वो पर्सन सीट नहीं करेगा तब तक आप उसको वहां से ऐसे आईज से क्या करेंगे? उठाएंगे, बिठाएंगे, देन वापस कहाँ आएंगे? बोर्ड पे. सो वो तो ठीक है, बट अगर हम बात करें यहाँ पे रेस्पॉन्स की, जब भी आप देखते हैं, आईज से देखा तो सेंसरी इनपुट मिला, आईज को क्या मिला? There is a sensory input which is received by your eyes, and the image, beautiful image capture in your camera of body. आंखें जो आपका कैमरा कैप्चर करके अंदर भेजा, रेटिना में बना, आपने देखा, ब्रेन ने आइडेंटिफाई किया, ब्रेन ने बोला शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब आपने क्या दिया? क्या दोगे? जब सेंसरी रेस्पॉन्स आएगा तो अगला क्या है? सेंसरी के बाद क्या आएगा? मोटर. सो यू विल गिव अ मोटर रेस्पॉन्स, एंड मोटर रेस्पॉन्स क्या आएगा? The first motor response which you produce for that reaction, this sensory input, that is a big smile on your face. आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी, देखा है? स्माइल. और ये जो स्माइल है कौन सा है? दिस इज अ मोटर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. इट इज नॉट अ सेंस, स्माइल इज नॉट अ सेंसरी पार्ट ऑफ बॉडी, स्माइल इज अ मोटर पार्ट. सो दिस इज अ रेस्पॉन्स व्हिच इज गिवन बाय यू फॉर अ स्टिमुलाई. एक सेंस इनपुट मिला, उसके लिए आपने क्या दिया? स्टिमुलाई दिया, एंड हो सकता है उस स्माइल का वापस स्टिमुलाई मिले दो थप्पड़ के साथ में, और आप फिर वापस रेस्पॉन्स दे रहे हो, अपना हाथ रख के दर्द को दबा रहे हो, वो आपका रेस्पॉन्स है. सो ऐसा ही यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ पहला, और वो है एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी. सो दिस इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ नर्व फाइबर व्हिच इज नोन एज
When you provide any stimuli, nerve fiber respond anytime. जब भी आप नर्व को स्टिमुलेट करेंगे, नर्व क्या करेगी? आपको रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी. इसको हम क्या बोलते हैं? That is known as excitability. So ability by which nerve responds to stimulus. कोई भी स्टिमुलाई प्रोवाइड कर दो, नर्व क्या करेगी? रेस्पॉन्ड करेगी. एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी. कभी भी नर्व ये नहीं बोलेगी कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं थोड़ी थकी हुई हूं, रहने दो. होता है? आप कभी भी पिन चुकाओ, चाहे रात को सो रहे तब चुको दो, दिन में जगे हुए तब कर दो, कुछ भी कर रहे हैं आप, थक के अब आज कुछ नहीं होगा, फिर भी एक थप्पड़ मार दो उसको, तो 2-4 थप्पड़ तो वो भी मार ही देगा, वापस वापस आ जाएगा, उसमें मोटर रेस्पॉन्स आएगा. कैसे? क्योंकि नर्व फाइबर कभी आपको फटीग फील नहीं करता है, वो हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? रेस्पॉन्स. ability of a nerve fiber to give response to a stimuli, this is known as excitability or irritability. Clear hai? And when nerve fiber is not responding to a stimuli, in that situation what is the problem? The nerve fiber is completely destroyed, not working, the person is having paralysis in that part. जब paralysis होगा तभी nerve fiber response नहीं करेगी. Other in all condition every time nerve fiber will respond. Yes. Next, second property of the nerve fiber is very important. All condition every time nerve fiber will respond. Yes. Next, conductivity is related to conduction, and conduction means transfer of information from one part to another part. Like आपने पढ़ा होगा करंट. करंट जानते हो? करंट पता नहीं कहाँ बन रहा है, जोधपुर में तो नहीं बनता है, फिर भी यहाँ करंट है कि नहीं है? और कहीं दूसरी जगह जाओगे, बहुत सारी जगह नहीं बनता, फिर भी वहां है करंट होता है. कैसे पहुंच रहा है? सो वायर लगे बड़े बड़े से, और वो वायरों के थ्रू वो क्या हो रहा है? यहाँ पहुंच रहा है. वो कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि वायर के पास क्या एक कंडक्शन पावर है. वायर इज हैविंग अ कंडक्टिविटी, और वी कैन से कंडक्शन पावर. हम बोलते हैं वाटर, पानी, वाटर इज आल्सो हैविंग अ कंडक्शन पावर. दैट्स व्हाई जब गीला होता है तब करंट आ जाता है. भले वहां वायर नहीं था, वायर उधर था, लेकिन गीला था, इसलिए आपको क्या लगा? शॉक. ह्यूमन बॉडी इज आल्सो हैविंग अ कंडक्शन पावर, है नहीं है? तभी तो झटका लगता है, करंट आता है. अगर कंडक्शन पावर नहीं होता हमारे अंदर तो करंट नहीं आता. फिर कभी आता क्या? हमारी बॉडी में कंडक्शन पावर होता है, तभी तो वो करंट वहां से हमारी बॉडी में आता है ऐसे, और सीधा जमीन में जाता है. करंट कब लगता है झटका? जानते हो आप? करंट तब लगेगा जब आपका सर्किट कंप्लीट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलेगा, यानी एक से आएगा दूसरे में जाएगा. सो जब हम किसी वायर को टच करते हैं, कुछ भी करते हैं, और उस टाइम आपका पैर जमीन पे लगा हुआ है, तो वायर से करंट आपकी बॉडी में आएगा और जमीन में जाएगा, इसीलिए आपको झटका लगेगा. और जब तक पकड़ के रखोगे तब तक आएगा, रुकेगा नहीं वो. लेकिन आप जूते पहन लो और फिर वायर को पकड़ लो, कभी शॉक नहीं आएगा, करंट कभी नहीं गया. क्यों? क्योंकि वहां पे आपने बीच में जो कंडक्शन था वो क्या कर दिया? जो आपका सर्किट था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया. मींस रबर प्लास्टिक इज नॉट थिंग विच हैविंग कंडक्टिविटी, उसमें कंडक्शन नहीं होता है. इसीलिए जो भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो सब जूते पहनते हैं, उनके पास स्लीपर्स, वो पहन के हमेशा काम करते हैं, कभी वो बिना उसके काम नहीं करते. नहीं तो क्या लगेगा? करंट. तो यहाँ पे हमारी बॉडी में भी एक सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है कंडक्शन सिस्टम. एंड ये कंडक्शन बॉडी में कौन लेके जाता है, लाता है? कंडक्शन पावर कौन देता है? तो आंसर होगा आपका द नर्व फाइबर इज अ स्पेसिफिक फाइबर व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू another body part, or we can say which conduct the information from one part to another part. That is the conductivity. Clear? So ability of a nerve fiber to transmit the impulses from one area to another area. इस एक ही बिल्डिंग पे पता नहीं कितनी बार ये करेंगे, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है. जब से हमने यहाँ स्टार्ट किया तब से ये ड्रिल किए जा रहे हैं. आज नहीं, जब हमने 2020 या 20 में स्टार्ट किया तब से ड्रिलिंग ही हो रहा है यहाँ पे. तब से हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं. हम सोचते हैं इस साल तो पूरा हो ही गया बस, लेकिन ये पूरा लाइक कुछ उस टाइम यहाँ पे ऐसे ग्रीन वाला वो लगा कि हमने पता ही नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते हैं. और ये स्पीड भी लिखा हुआ है यहाँ पे. Nerve impulses travel at the speed ranging from 0.5 to 130 meters per second. इतना स्पीड होता है 130 मीटर पर सेकंड. एक सेकंड में 130 मीटर क्रॉस कर जाएगा. इतना तो बॉडी होता ही नहीं लंबा जितना इसका स्पीड होता है. इसलिए तो करंट ऐसे टच करते लगता है, धीरे धीरे आता है तो धीरे धीरे पहुंचता है. इतना फास्ट होता है पूरी बॉडी में, आपको सेंसेशन स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर ऑन द स्ट्रक्चर बेसिस. वन इज द माइलिनेटेड नर्व एंड सेकंड वन इज ए नॉन माइलिनेटेड नर्व. सो विच नॉन माइलिनेटेड. सो ये लिखा हुआ है मोड ऑफ कंडक्शन, दो टाइप के, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड. नहीं लिख रहा है वापस, ऑलरेडी लिख दिया आप लोगों ने पहले. मूव करें. थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नर्व फाइबर has the ability to respond at stimuli. एंड हमने ये भी मेंशन किया कि नर्व फाइबर विल गिव रिस्पांस टू एवरी स्टिमुलाई एवरी टाइम. बट एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, देखा है, जो कुछ बोलेंगे उनको ये कर दो, नहीं करूंगा. होते हैं ऐसे जो हमेशा क्या करते हैं? मना करते हैं. ये कर दो, नहीं करूंगा. ये कर दो, नहीं करूंगा. फिर कभी कभी क्या होता है, उसके ऐसे करते इधर पड़ता है जोर से ऐसे खींच के एक तमाश होता है, और जैसे ऐसे पड़ता है वो उठ के दौड़ के काम करना स्टार्ट कर देता है. सो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड भी यही है. रिफ्रैक्टरी पीरियड मींस द टाइम पीरियड फॉर व्हिच a nerve fiber does not give response to a stimuli. ऐसा टाइम पीरियड जिसमें नर्व फाइबर किसी स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करता. जैसे वो बच्चा काम नहीं कर रहा है कुछ टाइम के लिए, वैसे नर्व फाइबर भी काम नहीं करता, डीड हो जाती है कभी कभी. उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टरी पीरियड. आया कुछ समझ में? व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड?
the time period for which a nerve fiber does not provide response to a stimuli, that is known as refractory period. ऐसा कब और क्यों पॉसिबल है कि नर्व फाइबर रेस्पॉन्स नहीं करे? सो इट इज ओनली पॉसिबल, लाइक मैं फिर से एक और एग्जांपल देता हूं कि आपके घर का टैंक है, छत पे लगा हुआ है, इसमें पानी भर दिया आपने यहाँ पुल, अब आपको बोला जाए 1000 लीटर का टैंक है, आपको बोला जाए 1000 लीटर से भरा हुआ है, पूरा कंप्लीट फिल किया हुआ है, आपको बोल रहे हैं 1000 लीटर पानी भरो इसमें, तो आप क्या बोलोगे? भरा हुआ है, इसको पहले क्या होने दो, एम्प्टी होने दो, खाली होने दो, उसके बाद ही तो भर पाएंगे. वी कैन फिल दिस टैंक अगेन आफ्टर कंप्लीटली एम्प्टी. जब तक खाली नहीं होगा तब तक हम कैसे इसमें पानी भर सकते हैं? सेम कंडीशन हम यहाँ पढ़ते हैं. देयर इज अ टू प्रोसेस, वन इज द डीपोलराइजेशन and second one is the repolarization. So when depolarization process is completed, then which process is start? Repolarization. And when repolarization process is going on, at the same time you are not able to start the depolarization. तो ये चल रहा है तो इसको कैसे करेंगे? एक टाइम पे क्या हो सकता है, टैंक में जो भरा हुआ वो खाली नहीं होगा तब तक भर नहीं सकता, वैसे ये बंद नहीं होगा तब तक ये स्टार्ट नहीं हो सकता. सो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है in which when depolarization is completed and repolarization is going on, at this time we are not able to stimulate the nerve fiber, and that is known as refractory period. उसी को हम क्या बोलते हैं? refractory period. क्लियर? अब ये दो टाइप का हो सकता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया बच्चे का, बच्चे को आपने बोला ये काम कर दो, बच्चे ने बोला नहीं करूंगा, नहीं करेगा, नहीं करूंगा. फिर आपने उसको एक चॉकलेट का बहाना किया, 10 चॉकलेट मिलेगा जल्दी से करे, बच्चा उठा के झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया. हो जाता है सर, कुछ ऐसे जो मान जाते हैं, और कुछ होंगे नहीं चाहिए, नहीं करूंगा, उसको भले थप्पड़ भी मार दो 4-5, नहीं करूंगा तो नहीं, मार दो भले आज तो, पर मैं तो काम नहीं करूंगा. होते ऐसे ठीक होता है, उनको कुछ भी कर लो, कितना भी स्टिमुलाई दे दो, पर वो काम नहीं करेंगे. सो दो टाइप की कंडीशन होती है. एक होती है जो नॉर्मल होता है, आपने नॉर्मली बोला तब काम नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो वो काम स्टार्ट हो जाता है. जैसे स्पेशली भी नहीं है क्योंकि वो पहले ही स्टिमुलाई इतना हमारा इतना ही बहुत है, ज्यादा नहीं चाहिए. और जो लड़का होता है ढीठ वाला, उसको पिताजी बोल रहे कर दे, नहीं करूंगा, कर दे, नहीं करो, फिर उनको आता है डंडा लेके दे धनाधन, जो हाथ में आता है जूते चप्पल जो, तब जाके वो स्टार्ट होता है. सो वो है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. इन दिस टाइप ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड, at normal condition the nerve will not respond to a stimuli, but when you increase the stimuli nerve will start responding. नॉर्मल चार्ज दिया नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा चार्ज बढ़ाया काम करना स्टार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. एंड एक कंडीशन होती है कि मुझे तो मार दो फिर भी मैं काम, whatever you want to do with me you do, I will not do anything, मैं कुछ भी नहीं करूंगा. मारना है you kill me, okay, पर मैं आज काम नहीं. वो क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. कुछ भी कर लो नहीं होगा, कितना ही करंट लगा दो मर जाएंगे, और तो क्या होगा, कर लो, नहीं करूंगा, तो वो है absolute. So period at which the nerve does not produce any response to a stimulus is known as refractory period, and this will be divided into two types. Absolute refractory period, nerve does not show any response at all, कुछ भी कर लो कोई response नहीं आएगा, वो क्या है? Absolute. And refractive, जो relative refractory period है, relative refractory period nerve shows response if the strength of the stimulus increase to maximum. जो उसका tolerance level तक पहुंचा दिया आपने strength, तो फिर वो काम करना start. So ये थर्ड आपका property nerve का. क्लियर है? आया कुछ? लास्ट पॉइंट, इन विंडो निकाल दी तो सब मिट्टी अंदर ही आता. इनफैटिगेबिलिटी, इनफैटिगेबिलिटी मींस आप लोगों को पूछा जाए बात करें तो आप 2-4 घंटे बाद थक जाते हो, बस सर आज बहुत हो गया, दैट इज फैटिग. लेकिन नर्व फाइबर कभी फैटिग फील नहीं करता है. आपकी इच्छा है उतना काम कराओ इसे, रात दिन लाइफ टाइम तक ये वर्क करेगी, बट इट विल नेवर फील फैटिग. सो नर्व फाइबर नेवर फील फैटिग, दैट इज आल्सो अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ आवर नर्व. एज लाइक हार्ट, जो हार्ट है वो भी लाइफ टाइम काम करता है, वैसे ही नर्व फाइबर भी कभी रेस्ट नहीं करती है, एवरी टाइम वो हमेशा तैयार रहती है आपके रेस्पॉन्स के लिए. सो इनफैटिगेबिलिटी, नर्व फाइबर कैन नॉट बी फैटिग इवन इट इज स्टिमुलेटेड कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम. कितनी भी बार उसको स्टिमुलेट कर दो फिर भी ये तैयार है वापस के लिए, आ जाओ अगली बार, रेडी. So it is a specific property of a nerve, that is infatigability. These are the 4 properties of the nerve जो यहाँ पे complete होता है. छोटी छोटी चीजें, इंपेटिगॉन, विटिलिगॉन. Synapse means, next is the synapse, junction between two nerve fiber or the neuron, that is known as synapse. When one nerve fiber attached to the another nerve fiber, that junction point is considered as a synapse. कैसे बनता है, क्या होता है इसमें, देखें बनाते हैं हम इसको. So here I am drawing a neuron. This is the first neuron, and this is the second neuron. This is the junction. Clear? So this is the first neuron. ये आपका कौन सा है? First one, and this is the second one. This is the terminal part of the first neuron, जिसको हमने बोला था
टीलोडेंड्राइट्स, याद है टीलोडेंड्राइट्स, जो आपका लास्ट पार्ट था वो ऊपर बना हुआ है, एंड जो ये लास्ट नीचे जो बनाया दैट इज द डेंड्राइट्स, दिस इज द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, ये डेंड्राइट्स है और ये क्या है टीलोडेंड्राइट्स है। सो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बनता है ये होता है सिनेप्स। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अ सिनेप्स, दिस इज द न्यूरॉन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट साइड, दिस इज नोन एज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री synaptic neuron. The neuron which is present on the second one, this is known as post synaptic neuron. And the space which is present in between these two neurons, this is the space 1 and 2, this is the space, and this space which is present between these two neurons is known as synaptic cleft, synaptic cleft. Combinedly these three structure, the presynaptic neuron, postsynaptic neuron and the synaptic cleft, combinedly known as a synapse. तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, synapse. Clear? So structure of synapse की बात करें तो basically there are two end of the neurons, one is the presynaptic neuron and second one is the postsynaptic neuron which is attached with the fibers, and there is a space or gap between these two neurons which is known as synaptic cleft. At the end of the presynaptic neuron which we already discussed, there is a buttons, याद है? So these are the synaptic buttons or the terminal buttons, and these buttons filled with a neurotransmitter, these buttons are filled with a neurotransmitter. So if somebody asks you the neurotransmitter in our neuron present in which part, the answer should be in the terminal part of the neuron, terminal part, or we can say in synapse in the presynaptic neuron, neuron में terminal part और synapse में presynaptic neuron. On the surface of postsynaptic membrane, these are the, ये जो बने हुए इनमें क्या आएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर आके ऐसे फिल हो जाएगा. So these are the receptors, ये क्या है, receptor. So again the next question, if somebody asks you the receptor present on which part of the synapse, so the presynaptic neuron, surface of the presynaptic neuron is having receptors. Clear? Surface of the postsynaptic neuron having receptors. Clear? This is the basic structure of a synapse, and this is the most common type of synapse. We have different types of synapse, so हम discuss करेंगे यहाँ पे अभी. This is the most common type जहाँ पे जो one terminal part of the neuron जो axon है आपका अटैच होता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के ऊपर, इसको हम बोलते हैं एक्सोडेंड्राइटिक synapse, जो अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे. तो बना लिया? This is the synapse. हटा दे? जानते हो आप, मेरे इसमें अभी मैसेज आ रहा है हैव सम वाटर, समझ आ रहा है कुछ? पानी पी लो, फिर स्नैक्स भी है और आगे सिनेप्स भी लिख लो आप. डेफिनेशन ऑफ सिनेप्स क्या है? सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, और ये आपने ऑलरेडी अभी बनाया, वही है, बस डेफिनेशन लिखना है. सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन दैट इज नोन एज सिनेप्स. वेल बस, तो उसके बाद ही मैं आप नेक्स्ट जो है सिनेप्स पढ़ाऊंगा आपको. तब तक आप लोग रिवाइज करें अच्छे से इनको. थैंक यू.